Hello students, today we will continue with the next part of Poets and Pancakes. We were at this point. A few months later, the telephone lines of big bosses of Madras burst, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. Before that, we have already discussed about MRA Company, Moral Rearmament Army, that they had visited to Gemini Studio, and there was much effect of MRA company on the Tamil drama. Now another visitor was coming, and that's why that has been said a few months later. The telephone lines of the big bosses of Madras burst. कि कुछ महीने बाद ही टेलीफोन लाइन्स हैं बिग बॉसेस की. हु वाज द बिग बॉस? SS Vasan. That was buzzed or ringed. And once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage, and they have cleared the whole shooting stage to welcome another visitor because the another visitor was about to come. So, who was the another visitor? Something has been said about him. All this said for the bosses and Subbu number two, they were saying that he was a poet from England. That he was a poet from England. The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. So, those who were in story department or in even simple Gemini staff knew about the English poets. They were either Wordsworth or Tennyson. And the more literate one, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, more literate थे, once they knew of Keats, Shelley and Byron. And one or two might have faintly come to know of someone by the name of Eliot. किसी ने कोई faintly, very less you can say they have heard about the name of T.S. Eliot. Who was the poet visiting to the Gemini studio now? Now that was the question, that who is the new visitor who is going to visit Gemini studios. Next, there was also such a rumor that he was not a poet, he is an editor. कि वो poet नहीं है, एक editor है, ऐसी बात भी फैली. That's why the boss is giving him a big reception, and that's the reason that boss SS Vasan, he was giving him a big reception. Why? Because there was also reason Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Anand Viktan. So SS Vasan है वो भी क्या है, आनंद विक्टन का editor, and that's why he was giving a big reception in form of welcome to this editor of the poet. Now it has been also discussed by Asoka Mitra that for what newspaper or magazine he was editor of. So he is talking about he was not the editor of any of the non names of the British publications in Madras. कि मद्रास के अंदर जितने भी ब्रिटिश पब्लिकेशंस थे उनमें से वो किसी भी ब्रिटिश पब्लिकेशन का एडिटर तो नहीं था कम से कम, बिकॉज दे वेल नोन टू देम. दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो के अंदर जितने भी नॉन न्यूज़पेपर्स वहाँ पर आते थे, एंड ही वॉज नॉट एडिटर ऑफ देम सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव. क्योंकि द हिंदू जो मैगजीन न्यूज़पेपर था उसके जो टॉप मैन थे दे वर टेकिंग द इनिशिएटिव, because media is also responsible. Media also comes in between when a such type of editor or poet from foreign come to a studio like Gemini Studios. So top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise. So there was such a surmise or rumor or the talking was that the poet was the editor of a Delhi, कि ये poet है वो एक editor है Delhi newspaper का, बट नॉट फ्रॉम द मानचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स. न तो मानचेस्टर गार्जियन का है न लंदन, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं दे वर वेल नोन इन जेमिनी स्टूडियो. ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ दोज न्यूज़पेपर्स. दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, कि जितने भी वेल इन्फॉर्म्ड लोग थे उनमें से जो जानते थे वे जिस भी न्यूज़पेपर के बारे में, दे डोंट नो, दे डिडंट नो अबाउट दैट विच टाइप ऑफ एडिटर ही वॉज. So anyhow, at last, around 4 in the afternoon on the particular date of his arrival, the poet or the editor arrived. He was a tall man, very English, tall man था, English था, British person था, very serious, और काफ़ी serious भी था, and of course very unknown to all of us, और निश्चित तौर पे इन लोगों से unknown था, as he had Asoka Mitra had already discussed.
So now, because he had come also, boss was going to give a long speech for him. So battling with the half a dozen pedestals, fans of the on the shooting stage, the boss read a speech for him. बॉस ने एक स्पीच रीड किया उसके वेलकम के अंदर, एंड ही वाज आल्सो बैटलिंग और स्ट्रगलिंग विद द वॉइस ऑफ डजन ऑफ पेडेस्टल्स फैंस, कि वहाँ पर पैर से चलाने वाले जो फैंस थे वो भी नॉइस कर रहे थे, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग विद द स्पीच बिकॉज ही वाज आल्सो नॉट वेरी वेल नोन टू this person or visitor. So he gave a long speech. It was obvious that he too knew precious little about the poet. कि ये भी obvious था, clear था कि he also knew very precious, it means very little. जितना भी वो जानता था वो precious था, because he doesn't know very much about this poet or editor. The speech was all in most general terms, but here and there it was peppered with the words like freedom and democracy. जो स्पीच है वो मोस्ट जनरल टर्म्स के अंदर बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन उसको पीपोर्ड किया गया था, उसको आप कह सकते हैं फैब्रिकेट किया गया था, मिर्च मसाला उसके साथ लगाया गया था, फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड लगा करके. सो एनी हाउ वट एवर द स्पीच द बॉस हैड गिवन, एट लास्ट पोइट ऑल्सो स्पोक. पोइट का टर्न आ गया, पोइट ने कुछ बोला. ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, कि जब वो एड्रेस कर रहा था तो होल ऑडियंस वर टोटली साइलेंस. एंड ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड और सरप्राइज्ड और साइलेंट ऑडियंस, कि इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड क्योंकि सभी ऑडियंस थे, दे कुडंट अंडरस्टैंड हिज एक्सेंट, एंड दैट्स वाई दे वर ऑल्सो साइलेंट एंड सरप्राइज दैट वाई दिस पोइट हैज़ कम हियर एंड व्हाट ही इज स्पीकिंग अबाउट. सो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. किसी को ये नहीं पता था कि वो क्या बातें कर रहा है. एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट, और उसका जो एक्सेंट था, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, that also defeated any attempt to understand what he was saying. जो भी वो कह रहा था वो किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था. The whole thing lasted about an hour. आखिरकार उसका स्पीच है वो लगभग 1 घंटे में ख़त्म हुआ. Then the poet left. उसके बाद पोइट ने वो जगह छोड़ दी. And we all dispersed in utter bafflement, कि हम बहुत ज़्यादा bafflement के अंदर, सरप्राइज के अंदर डिस्पर्स हो गई, सभी लोग वहाँ से चले गए. Now Ashokamitra was asking to himself, what are we doing? कि हम लोग कर क्या रहे थे यहाँ पर, कुछ समझ में भी नहीं आया. व्हाट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, कि ये जो इंग्लिश मैन है वो यहाँ पर क्या कर रहा था, इंग्लिश पोइट इस फिल्म स्टूडियो के अंदर, विच मेक्स तमिल फिल्म, जो कि तमिल फिल्म्स बनाता है फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीपल है, सिंपल तरह के लोग हैं, उनके लिए केवल ये तमिल फिल्म बनाता है. फिर भी यहाँ पर इंग्लिश पोइट क्या कर रहा था, पीपल हुज लाइव्स लिस्ट अफोर्डेड, कि ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ बहुत ही कम अफोर्डेड है, अच्छी चीज़ें अफोर्डेड दें, उनको अच्छा अफोर्ड नहीं देती, खाना ही मुश्किल से मिल पाता है. द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो कल्टिवेट कर सकें, ग्रो कर सकें एक इंग्लिश पोइट्री के टेस्ट को? इज इट पॉसिबल? सो ही इज Ashokamitra was asking such a question that was totally in disagreement. The poet looked pretty baffled, कि जो पोइट था वो भी क्या है, बेफल्ड नजर आया, वो भी सरप्राइज नजर आया, बिल्कुल से घबरा गया कि ये सब हो क्या रहा है. और ही टू मस्ट हैव फेल्ट द सियर इनकॉन्ग्रुइटी, कि निश्चित तौर पे उसने भी ये महसूस किया होगा कि दैट इज सियर और थिन और वीक इनकॉन्ग्रुइटी, दैट इज नॉट एग्रीड और डिसएग्रीमेंट ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, कि उसकी जो टॉक थी, उसकी जो बातचीत थी, जो कि वो बातचीत कर रहा था थ्रिल्स के बारे में, दैट इज excitements, romance of his poetry, and also travels on the pain or suffering of an English poet. English poet की क्या excitements होते हैं, क्या उसकी sufferings होती हैं, उन चीज़ों के बारे में जो भी वो speech दे रहा था, he was also feeling, he must have felt that there was a weak incongruity, की बहुत ज़्यादा ही क्या है पुअर उनके बीच में agreement था, किसी प्रकार का disagreement था. They were not having in agreement, the audience and the speaker. His visit remained an explained mystery. अब सभी लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे, बात कर रहे थे, आखिरकार ये आया क्यों है, what was the reason of his visit, and that was unexplained mystery, because they couldn't understand why he has come, so that was only a mystery or secret. In the next, the great prose. Now the poet, the writer Ashokamitra is telling about that once what happened, he had seen द हिंदू न्यूज़पेपर, ही हैज़ सीन एन एड, उसने एक ऐड देखी, एंड इन द ऐड देयर वाज सच ए कॉन्टेस्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग. स्टोरी राइटिंग की एक कॉन्टेस्ट है वो उसको मिली,
और उस कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग एनकाउंटर नाम का कोई मैगजीन थी, और वो उसका जो एडिटर है वो स्टोरी कॉन्टेस्ट के लिए राइटर्स को क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट करवाना चाहता था. सो ही डिमांडेड दैट if anyone is to story write, they can send their stories and there will be a competition on that basis of stories. तो अब इसीलिए यहाँ पर अशोका मित्रा है वो बता रहा है कि स्टोरी राइटिंग है, प्रोस राइटर्स है, वो कितनी डिफिकल्टी से लिखी जाती है. ही इज टॉकिंग ऑल अबाउट दैट. द ग्रेट प्रोस राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मीन नॉट एडमिट, कि जो ग्रेट प्रोस राइटर है वो शायद इसमें एडमिट भी ना करें, लेकिन वो उसका मानना है, बट माई कॉन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर डे बाई डे आफ्टर डे, कि एक दिन के बाद दूसरे दिन उसकी जो कॉन्विक्शन है, उसका जो मानना था वो लगातार बढ़ता जा रहा था. दैट प्रोस राइटिंग इज नॉट एंड कांट बी द ट्रू प्रीशूट ऑफ ए जीनियस, कि वास्तव में एक जीनियस है उसको ये प्रीशूट नहीं करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए स्टोरी राइटिंग को या प्रोस राइटिंग को. इट इज़ फॉर द पेशेंट, क्योंकि ये वास्तव में उस आदमी के लिए है जो कि पेशेंस रख सकता है, प्रिसिस्टेंट मतलब जिद हठी स्टबोर्नेस रख सकता है, प्रिजर इन ड्रग्स की प्रिजर्व कर सकता है किसको, ड्रग्स को, हार्ड लेबर को. तो ये सारी चीज़ें जिसके पास होंगी ओनली दे कैन राइट प्रोस राइटिंग विद अ हार्ट सो श्रंकन, एक ऐसा हार्ट हो उसके पास जो इतना श्रंकन है, इतना सिकुड़ सकता है दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि इस चीज़ उसके हार्ट को कोई भी तोड़ ही नहीं सकता. एंड ही कुड डू ऑल दिस. रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, और रिजेक्शन तो उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता है. ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी. तो जैसे ही उसने एनकाउंटर नाम की मैगजीन के लिए स्टोरी राइटिंग का द हिंदू के अंदर जैसे ही वो कंपटीशन देखा, उसने भी स्टोरी लिखनी स्टार्ट कर दी है. एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोस पीस एंड सेंड्स इट ऑन टू द अनदर एडिटर, और दूसरे एक एडिटर को उसने इसको भेज दिया, इनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट. और मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन, जो भी उसने हैंड रिटन स्टोरी लिखी थी उसको, ताकि वो वापस भेज के पोस्टेज के साथ उसने भेज दिया. तो पहले एक एनवलप के अंदर उसने अपना स्टोरी लिखी, उसके ऊपर पोस्टेज लगाए, और साथ में एक एनवलप और भी रखा उसके अंदर, उसके ऊपर के भी क्या है पोस्टेज लगाए, सो दैट इट द हैंड रिटन कुड बी सेंट. इट वॉज फॉर सच पीपल, ये उन लोगों के लिए था, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड, हिंदू ने ऐसा पब्लिश किया था, दैट अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट पेज, कि हिंदू के किसी अनइम्पोर्टेंट पेज के किसी कॉर्नर के अंदर ऐसा अनाउंसमेंट दिया गया था. ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ एनकाउंटर, कि ब्रिटिश पीरियोडिकल है, ब्रिटिश की के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कोई पीरियोडिकल है, पीरियड वाइज क्या है, एक मैगजीन है जिसका नाम है एनकाउंटर, और वो पब्लिश होती है. उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट रखी है, प्रतियोगिता रखी है, दैट्स व्हाई ही हैड रिटन द स्टोरी. ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेरी. एक बार फिर से जो ये नाम सुना उसने, जैसे एनकाउंटर, ये भी वेल नोन नहीं था जेमिनी स्टूडियो के जितने भी लिटरेट पर्सन थे उनके अंदर. सो दैट्स वाई ही ऑल्सो वांटेड टू गेट एन आइडिया. सो आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट टू द एडिटर ऑफ द एनकाउंटर. तो उसने ये डिसाइड किया कि अगर मैं अपना मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन मैटर लिखता हूँ और भेजता हूँ, वहाँ पर लिख तो लिया ही था उसने, एक बार उसने डिसाइड किया कि इसके ऊपर पैसा अच्छा लगेगा, पोस्टेज चार्ज ज़्यादा है क्योंकि इंग्लैंड में भेजना है, एंड दैट्स वाई आई शुड चेक फर्स्ट अबाउट द एनकाउंटर, कि मुझे इस एनकाउंटर के बारे में एक बार पता करना चाहिए. सो वट इंफॉर्मेशन ही गॉट बिफोर दैट ही शुड सेंड इट टू इंग्लैंड. In those days the British Council Library, so he had gone to British Council Library in Madras, वहाँ पर हो गया, had an entrance with no long winded signboard, और जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी उसके अंदर न तो कोई बहुत हवादार बड़े से साइन बोर्ड्स थे, एंड नोटिस न उसके ऊपर कोई नोटिस था, टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया. तो आप इस प्रकार से फील कर सकते थे कि आप जैसे स्निक कर रहे हैं, स्निक का मतलब सीक्रेटली यू आर एंटरिंग, चुप चोरी से आप जा रहे हैं इनटू ए फॉरबिडन एरिया, एक ऐसे एरिया के अंदर जो कि जिसको फॉरबिडन कहा गया है, जिसको दिखा गया है दैट यू कांट एंटर देयर. सो व्हाट ही saw there, he saw there that and there were copies of the encounter laying about in various degrees of freshness. लाइब्रेरी में उसने देखा कि that there were so many copies of encounter and they are laying about in various degrees, बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर फ्रेश कॉपीज वहाँ पर थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, और ऐसा लग रहा है कि रीडर्स ने उनको टच किया था, कभी टच ही नहीं किया था. व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम,
आई हार्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट। जैसे उसने एडिटर का नाम है वो रीड किया, एकदम से उसको लगा कि दैट आई नो द नेम, एंड ही हार्ड हिमसेल्फ बेल रिंगिंग इन हिज श्रंकन हार्ट। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि ये वो पोइट था जिसने जेमिनी स्टूडियो के अंदर विजिट किया था। नाम तो उसे पहले से पता था, लेकिन जब दोबारा नाम देखा देन ही केम टू नो दैट हु द पर्सन इज। सो आई फेल्ट लाइक आई हैड फॉर अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सेंग एज आई सेल्ड द एनालॉग। कि अब उसने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या है, एनालॉग भेजना है, और उसने एनालॉग को सील कर दिया और अपने आप को ऐसा महसूस करता है ही फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, कि जैसे मैंने एक लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, कि मेरा कोई भाई था वो, जैसे क्योंकि उसने केवल जेमिनी स्टूडियो के अंदर उस पोइट का नाम सुना था, उसके बाद उसको भूल गया था, लेकिन जैसे ही दोबारा यहाँ उसका नाम देखा ही थॉट दैट ही हैड फाउंड ए लॉस्ट ब्रदर एंड आई सेंग एज आई सील द एनालॉग। कहता है कि मैं गाना गा रहा था जैसे ही उस एनालॉग को सील कर रहा था, एंड रोट आउट हिज एड्रेस, उसका एड्रेस लिख रहा था। I felt that he too would be singing the same song of the same time at the same time, और अपने आप में ये महसूस कर रहा था कि शायद वो भी ऐसे ही गाना गा रहा हो जैसे मैं गाना गा रहा हूँ। एट द सेम टाइम लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन, अब उसको कंपेयर कर रहा है जैसे इंडियन मूवीज़ के अंदर, इंडियन फिल्म्स के अंदर क्या होता है, जो लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर होते हैं काफ़ी समय से बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खो जाते हैं, उनको गाना एक ही गाते हैं और बाद में जब वो लास्ट में मिलते हैं तब भी वही गाना गाते हैं। सो दैट टाइप ऑफ स्टोरी ही इज़ थिंकिंग अबाउट कि शायद वो भी ऐसा फील करे। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। स्टीफन स्पेंडर दैट वाज हिज नेम। अब नाम बता रहा है पहली बार कि उसका नाम वास्तव में कौन था, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर हमारी भी एक पोइम का पोइट है, और कौन सी पोइम है वो, दैट इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इनिशियल सेकंड पोइम। So anyhow, he had recognized, he has sent the story. So now he is telling the story at a different time. Now he is retired from the Gemini Studio. Gemini Studio से रिटायर हो चुका है, वहाँ वो नहीं काम कर रहा है। So when he is out of and years later, कि कुछ साल बाद फिर से वो रिकॉग्नाइज करता है, स्टीफन स्पेंडर वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है उसके बारे में बता रहा है। When I was out of Gemini Studio, कि मैं जब Gemini Studio से बाहर था, एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, कि टाइम बहुत था लेकिन अब पैसा नहीं था। एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिड्यूस्ड प्राइस के ऊपर थी, कम प्राइस के ऊपर थी, दैट वाज अट्रैक्टिंग हिज अटेंशन। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, कहता है कि एक दिन क्या हुआ, फुटपाथ के ऊपर जो कि मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने था, देयर वाज अ पाइल ऑफ अ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच, कि वहाँ पर पूरा पाइल लगा हुआ था, ढेर लगा हुआ था, ब्रांड न्यू बुक्स थी और 50 पैसे ईच के अंदर मिल रही थी। सो एज ही इज सेइंग दैट रिड्यूस्ड प्राइस, एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, सो ही वाज आल्सो अट्रैक्टेड बाय द 50 पैसे। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वास्तव में वो सभी एक ही बुक की कॉपी थी। इन एलिजेंट पेपर बुक, एक बिल्कुल शानदार सा पेपर बैक या उसका कवर है वो लगा हुआ था, एंड दैट वाज ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, दैट वाज आल्सो रिटन, कि स्टूडेंट एडिशन है, ये स्पेशल प्राइस दिया गया है, लो प्राइस 50 पैसे के लिए। एंड ऑल्सो एडिड इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन, की जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917, उसकी 50th एनिवर्सरी थी। सो इट वाज, यू कैन इमेजिन दैट वाज 1967, कि उसके ओकेजन के ऊपर इसको स्पेशली 50 पैसे का किया गया था। आई पेड 50 पैसे, तो उसने तुरंत, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें जो भी रिड्यूस्ड प्राइस की थी वो उसको अट्रैक्ट करते थे, सो ही पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल। सो नेम ऑफ द बुक वाज द गॉड दैट फेल। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, कि वास्तव में क्या होता, 6 एमिनेंट मीन्स फेमस मैन ऑफ लेटर्स राइटर्स इन 6 सेपरेट एसेज, उन्होंने 6 अलग अलग ऐसे लिखे थे इस बुक के अंदर। डिस्क्राइब्ड देयर जर्नीज, उन्होंने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया था, दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिज्म, जो कि कम्युनिज्म से रिलेटेड थी। एंड देयर डिसइल्यूशन्ड रिटर्न, और किस प्रकार से वो डिसइल्यूशन होकर के डिसपॉइंटमेंट के अंदर रिटर्न हो गए थे, वापस आ गए थे, दैट हैज़ बीन रिटन इन दिस बुक। कौन कौन से वो राइटर थे, द नेम हैज़ बीन गिवन, एंड्रू गाइट, रिचर्ड राइट, इग्निचो सेलन, आर्थर कोलेस्टर, लुइस फिशर। Louis Fisher is also writer of the life of Mahatma Gandhi. We have that Indigo is part of life of Mahatma Gandhi, और ये लुइस फिशर है, हमने इंडिगो के अंदर इंडिगो का राइटर है, वी हैव ऑलरेडी लर्न। एंड स्टीफन स्पेंडर, और फिर उसके बाद फिर से नाम आया स्टीफन स्पेंडर का। सो ही वाज वंस अगेन सरप्राइज, ओ यस स्टीफन स्पेंडर, लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, कि एक बार फिर से मेरा लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर मेरे सामने आ गया।
स्टीफन स्पेंडर को देख करके एकदम से सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडियस इम्पोर्टेंस फॉर हिम। इसके एकदम से उसको लगा कि ये तो ट्रिमेंडियस सिग्निफिकेंस की है, इम्पोर्टेंस की है ये बुक तो। सो वंस अगेन ही फाउंड दैट among the 6 writers one is of Stephen Spender and he must read it, that who was Stephen Spender and why did he come। वो अलग बात है कि that has been already known, बुक के अंदर पहले से ही दिया हुआ है that he had come for the spread of communism, journeys into communism, कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए, साम्यवाद को प्रचार करने के लिए वो वहाँ पर आया था। not only that person but also the 6 they had visited to the different parts of the world, Andrew Wright, Richard Wright, Ignatius Zollin, Arthur Koestler, Louis Fisher and also Stephen Spender, they were the part of the communism or they were communist। तो अब आखिरकार उसको ये पता चल गया कि स्टीफन स्पेंडर क्यों आया था। स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, ये तो वही पोइट था जिसने जेमिनी स्टूडियो के अंदर विजिट की थी। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय ए हेजी इल्यूमिनेशन, की तुरंत उसी मोमेंट के अंदर मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे हेड का जो, मेरे माइंड का जो एक डार्क चैम्बर था जो हमेशा अंधेरे के अंदर था कि स्टीफन स्पेंडर क्यों आया था, अब वो एकदम से खिल उठा। माइंड लिट अप बाय ए हेजी इल्यूमिनेशन, हेजी अनक्लियर, स्पष्ट रूप से तो नहीं लेकिन अब एकदम से प्रकाश आ गया उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कि वास्तव में स्टीफन स्पेंडर क्यों आया था। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर मिस्ट्री, अब जेमिनी स्टूडियो के अंदर बिकॉज ही हैड ऑल्सो विजिटेड देयर एंड टोल्ड द स्टोरी ऑफ स्टीफन स्पेंडर, सो दैट वॉज नॉट ए मिस्ट्री नाउ। अब वो बहुत समय तक मिस्ट्री नहीं रहा, वो सीक्रेट नहीं रहा, सभी को पता चल गया कि व्हाट वाज द aim of that person, Stephen Spender, the poet or editor who had visited the Gemini studio. The boss of Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, और बॉस को भी, जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था उसको भी स्पेंडर की पोइट्री से कोई मतलब नहीं था, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल, लेकिन उससे भी कोई मतलब नहीं था, उसका जो गॉड था दैट वाज कम्युनिज्म, उससे भी उसको कोई भी मतलब नहीं था। सो दैट्स द स्टोरी। नाउ वी विल कंटिन्यू with the next lesson in the next video.